آج سمیہ خالہ کی آمد ہوئی تھی اور وہ کب سے سارا کے ساتھ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ سارم کو باوجود ان کی طرف کان لگانے کے بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سچ پوچھو، آج تمہاری یاد ہی مجھے یہاں کھینچ لائی۔ پارٹی میں بھی آنے کا دل نہیں کیا میرا، مگر کچھ بھی ہو، اولاد کے غلط فیصلوں کی وجہ سے میں تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ سمیہ نے سارا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ سمیہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی شرمندہ ہوں۔ اسی وجہ سے میں اتنی دیر سے تمہاری طرف نہیں آئی۔ میں نے تو ہمیشہ نیہا کو لانے کا سوچا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا دائم یہ سب کر جائے گا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ نیہا تو جس دن سے واپس گئی ہے یہی کہتی ہے آئندہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ اتنا دل ٹوٹا ہے میری معصوم بچی کا۔ سمیہ نے دکھی دل سے کہا۔ تم اس سے کہنا میری کال تو ریسیو کرے، اتنے دن ہو گئے ہیں اس سے بات کیے۔ لو، تم بات کرنے کا کہتی ہو اور وہ کہتی ہے کوئی میرے سامنے اس گھر کے کسی فرد کا نام تک نہ لے۔ دیکھو سارا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب کب تک تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہو گی؟ جان چھڑاؤ اب اس بلا سے۔ دم نہیں گھٹتا تمہارا اسے دیکھ دیکھ کر۔ سمیہ نے عدن کو اپنی طرف آتے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ انہیں سلام کر کے سارم کے پاس بیٹھ گئی۔ اٹھو کمرے میں چلتے ہیں۔ سارا انہیں لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا کچھ کرو، میرا تو اسے دیکھتے ساتھ ہی بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوتا کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں؟ پوچھو مت کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ مگر دائم کی آنکھوں پہ تو پتہ نہیں کون سی پٹی باندھ دی ہے اس نے۔ وہ تو ویسے ہی اندھا ہو گیا ہے۔ اس کی نظروں میں تو صرف میں ہی بری ہوں، اور سارم کو دیکھو، اسے تو بھابھی کے علاوہ کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے۔ اور تو اور کل میں حیران رہ گئی جب طلال نے کہا دائم کی چوائس لاجواب ہے۔ عدن بہت فرما بردار بچی ہے۔ ایک طلال ہی تو خلاف تھے دائم کے فیصلے کے، مگر اس ڈائن نے پتہ نہیں کون سا جادو کر کے سب کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ میں اسے اس گھر سے نکالنے کا منصوبہ کر رہی ہوں اور وہ ہے کہ سب کو اپنی مٹھی میں کرتی جا رہی ہے۔ سارا نے ازحد پریشانی سے کہتے ہوئے سمیہ کو دیکھا۔ سارا، تم تو بھولی ہو میری بہن۔ تم کیا جانو یہ آج کل کی لڑکیوں کو۔ نیہا اب اس گھر میں آنا بھی پسند نہیں کرتی، مگر میں اس کی ماں ہوں، اچھے سے جانتی ہوں اس کو۔ تم اس مصیبت سے جان چھڑاؤ، میں نیہا کو دائم سے شادی کرنے پہ خود راضی کروں گی۔ تم کیا سوچتی ہو میں نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ خدا خدا کر کے اس کی رپورٹ بنوائی تھی اور وہ بجائے اسے گھر سے نکالنے کے مجھ پہ آ کے چڑھائی کرنے لگ گیا۔ شکر ہے اس نے طلال کو کچھ نہیں بتایا۔ کھٹک تو طلال بھی گئے تھے کہ نیہا ایک دم کیوں چلی گئی، مگر میں نے بھی انہیں مطمئن کر دیا ہے۔ لیکن اب تم فکر مت کرو، اب کی بار ایسا پتا پھینکوں گی کہ دائم اسے ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ سارا کے دماغ میں فوراً سے ایک سوچ لہرائی۔ یہ ہوئی نا بات، تم ماں ہو، اس کی کچھ بھی کر سکتی ہو۔ ایک بار یہ لڑکی اس گھر سے چلی گئی، دائم کو تو یہ تک بھول جائے گا کہ کبھی اس کی شادی بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، نیہا کو پتہ چل گیا تو پھر سے شور مچائے گی۔ ٹھیک ہے، نیہا سے کہنا میرے سے بات کرے، میں اسے بہت مس کر رہی ہوں۔ اوکے، کہہ دوں گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر چلی گئی۔ آج پورے چاند کی رات تھی۔ وہ دونوں ٹیرس پہ کھڑے کافی پی رہے تھے۔ نیچے لان میں درخت ساکن کھڑے تھے۔ چاند کی ٹھنڈی سی روشنی ان دونوں کے چہروں پہ پڑ رہی تھی۔ سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا نا۔ کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ میری زندگی میں اب کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی، میں کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملوں گی، اسی طرح دربدری کا دکھ سہتے ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، وہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا۔ صرف آپ کی بدولت میری زندگی میں پھر سے رنگ بھر گئے۔ میں اپنے گھر والوں سے مل لی، ڈیڈی نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا،
मुझे इज्जत मुकाम हर शय वापस मिल गया। वो सांस लेने को रुकी। आपने ठीक कहा था, आपका साथ मुझे हर दुख भुला देगा। आज मैं इकरार करती हूँ, दुनिया का हर मर्द दाइम तलाल नहीं होता। वो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी, जिसने कॉफ़ी का कप रख के दोनों बाजू उसके गिर्द हाइल करके उसके घने बालों वाले सर पे अपने लब रख दिए। आई लव यू माई लाइफ। दाइम की बात पे उसने मुस्कुराते हुए उसके शाने से सर टिका दिया। हालांकि हर चीज़ ठीक हो चुकी है, फिर भी मुझे लगता है कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गलत होने वाला है। दाइम की बात पे उसकी शर्ट के बटनों पे उंगली फिरता अदन का हाथ लम्हा भर को थमा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, अब कुछ गलत नहीं होगा। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। और सबसे बड़ी बात, सारंग की शादी फिक्स हो गई है। थैंक गॉड। मम्मी ने उसकी चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया। मम्मी हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो सिर्फ आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, मुझे भी कर लेंगी आहिस्ता आहिस्ता। आप जो हैं मेरे साथ। उसके कहने पर दाइम की मुस्कुराहट गहरी हुई। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी? कभी दूर तो नहीं होंगी ना मेरे से? उसने बाजू का घेरा तंग किया। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे क्यों लग रहा है कुछ हो जाएगा। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार सिग्नल दे रही है। आपकी छठी हिस्स को और कोई काम नहीं है क्या? बिला वजह वहमों का शिकार ना हो। हम दोनों को एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता। नो, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अपना ख्याल रखा करें। मैं आपके बगैर हरगिज़ नहीं रह सकता। दाइम ने चांद की रोशनी में चमकते उसके सभी चेहरे को देखते हुए कहा। हुआ क्या है? आज से पहले तो कभी आपने ऐसी बातें नहीं की। उसकी बात पे वो होले से मुस्कुराया। वो उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई थी। आज से पहले आपने इजहार भी तो नहीं किया। कान तरस गए थे मेरे। आई नो, आप मेरी मुस्कुराहट की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, मगर इस तरह ना देखें मुझे। इस तरह देखने से मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए हैं। उफ़, सैकड़ों लड़कियां मरती थी मेरी मिलेनियर स्माइल पे। उसकी बात पे अदन ने तप कर उसके बाजुओं का हल्का तोड़ा। यू नो, एक लड़की मुझे अभी भी याद है। क्या नाम था उसका? हाँ, लाइबा। उसकी ब्लू कलर की आंखें थी। उनकी आज की रात इन यादों के साथ टेरेस पे ही गुजारनी है। खबरदार जो कमरे में आए। वो चीख कर कहती कमरे की जानी बढ़ी। उसकी धमकी पे दाइम पूरे दिल से हंसता उससे पहले कमरे में पहुंच गया। डैडी, सिंगापुर वाले कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मीटिंग है। आज एक डेलीगेशन आया हुआ है। आज रात 8 बजे मीटिंग है। आप आएंगे ना? नाश्ते की टेबल पे उसने तलाल से कहा। सारा के फौरन कान खड़े हुए। कहाँ पर है? पीसी में। नहीं, तुम उसे खुद हैंडल करो, ये तुम्हारा काम है। मैं कर लूँगा, लेकिन आप आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था। बेटा, मैं हर जगह पे तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उसे तुमने कवर करना है। एंड आई होप तुम पहले की तरह ये भी मैनेज कर लोगे। ज़रूर कर लूँगा। सारा ने जूस पीते हुए दाइम के साथ बैठी अदन को देखा। किस्मत इन्हें एक और मौका दे रही थी हर मुसीबत से जान छुड़ाने का। इसे वो किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। इट्स मैन, तुम आज डिनर पे हमारे साथ नहीं होगे? सारा ने उससे अपने मकसद की बात पूछी। जाहिर है मम्मी, डिनर मुझे उनके साथ ही करना पड़ेगा। उन्होंने दाइम की बात पे मुस्कुराकर सर हिलाया। शाम के वक़्त सारा चमकते चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकली। इलेक्शन के बाद तलाल अपनी मामूल की रूटीन में मसरूफ़ हो गए थे। सारंग कहीं बाहर निकला हुआ था। वो हील की टिक टिक बजाती अदन के पास आई, जो स्क्रीन पे BBC लगाए बैठी थी। क्या कर रही हो? नथिंग, फ्री हूँ।
क्या हुआ? फ्री हो तो मेरे साथ चलो। सारंग की शादी में कुछ दिन रह गए हैं, सारी शॉपिंग करने वाली है। रेयान की शादी पे तो अनाया यहाँ थी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन अब राबील की चॉइस का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें तो होगा, सो तुम मेरे साथ चलो। मैं चलूं? अदन ने हैरत से पूछा। सास की जानिब से ऐसी मेहरबानी पहले तो कभी नहीं हुई थी। हाँ, तुम चलो और जल्दी करो, टाइम कम है, रात होने वाली है, डिनर टाइम से पहले वापस आना है। अच्छा, मैं चादर लेकर आती हूँ। कुछ सेकंड में वो चादर लिए सीढ़ियों से उतरी और लाउंज में टेबल पे पड़ा मोबाइल उठाया। ये मोबाइल क्या करना है? अभी वापस आ जाना है हमने, इसकी ज़रूरत नहीं है। सारा ने उसे मोबाइल उठाते देखकर फ़ौरन कहा, अच्छा, फिर मैं पहले दाइम को कॉल करके बता दूं? क्यों? तुम यहाँ दुनिया छोड़ के जा रही हो, जो दाइम को पहले इन्फॉर्म करना है। आज मीटिंग है उसकी, काम करने दो उसे। सारा के कहने पे उसने मोबाइल वापस रख दिया। उज़्मा, इसे मेरे कमरे में रख आओ, वो कहकर सारा के हमरा बाहर निकली। कुछ ही देर बाद वो मार्केट में मौजूद थी। सारा ने ड्राइवर को वहीं रुकने का कहा और ख़ुद उसे साथ लिए मुख्तलिफ शॉप के चक्कर लगाने लगी। एक घंटे से वो एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी शॉप पे जा रही थी, मगर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मम्मी, रात होने वाली है, कुछ तो चूज़ कर लें, अभी घर भी जाना है। कितनी फजूल आइटम रखी हुई हैं इन्होंने यहाँ पे, एक भी ढंग की चीज़ नहीं है। कहीं इन्हें कलर पसंद नहीं आ रहा था और कहीं मटेरियल हल्का देखकर वो दूसरी शॉप पे चली जाती। 2 घंटों में वो पूरे मॉल का चक्कर लगा चुकी थी, मगर कोई चीज़ सारा की नाक के नीचे नहीं आई। मम्मी, मेरा ख्याल है हम कल को किसी और मॉल में चलेंगे, वहाँ से शॉपिंग कर लेंगे। अब वापस चलते हैं। उसने शाम का अंधेरा फैलते हुए फिर से सारा को कहा। अब ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे ना। यहाँ पे तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आओ कहीं और चलते हैं। वो मॉल से निकलती उसे लेकर काफ़ी देर चलने के बाद एक सुनसान से बाज़ार में आई थी, जहाँ पे रश ना होने के बराबर था। यहाँ से आपने क्या लेना है? अदन ने हैरत से इर्द गिर्द देखा, जहाँ इक्का दुक्का औरतें ही चीज़ें खरीदती नज़र आ रही थी। हर तरफ सिर्फ आदमी ही थे। बहुत सी दुकानों के शटर बंद हो चुके थे। ओह शिट, ज्वेलर तो पीछे रह गया, मुझे डायमंड रिंग का ऑर्डर देना था। अच्छा, तुम इधर ही रुको, मैं अभी ऑर्डर देकर आई। क्या मतलब है आपका मैं यहाँ पे रुकूँ? हरगिज़ नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। क्यों? तुम्हें कोई खा जाएगा यहाँ पे? इधर ही रुको, अभी आती हूँ मैं। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, लोग कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। ऊपर से रात हो गई है, मैंने नहीं रुकना यहाँ पे, मैं आपके साथ ही जाऊँगी। हाँ, तुम तो आसमान से उतरी कोई हूर हो ना, जिसे लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, और तो कुछ नज़र ही नहीं आता लोगों को। रुको इधर ही, वो सामने वाली सड़क पे ड्राइवर खड़ा है, अभी आती हूँ मैं। सारा उसे झड़ककर पीछे की तरफ मुड़ गई। उसे वहाँ पे खड़े आधा घंटा हो गया था, बहुत सी दुकानें बंद हो गई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मगर सारा का कोई नामो निशान नहीं था। इस तरफ मुकम्मल अंधेरा हो जाने के बायस वो सामने वाली सड़क पे जा खड़ी हुई, जहाँ सारा के कहे के मुताबिक ड्राइवर मौजूद था, लेकिन उस सड़क पे भी कोई नहीं था। ये सड़कें और गलियाँ तो उसने कभी नहीं देखी थी, जहाँ सारा उसे आज ले आई थी। स्ट्रीट लाइट रोशन हो गई थी, कोई ट्रैफिक आज जा रही थी। कुछ आवारा लड़के सीटियाँ बजाते उसके आगे से 2-3 बार गुजर चुके थे। खौफ के मारे अब उसे रोना आ रहा था। अंधेरा चारसू फैल गया।
उसे सड़क पे खड़े 2 घंटे गुजर चुके थे। अजीब इलाका है, इस वक्त तो शहर की रोशनियाँ अरूज पे होती हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है। या अल्लाह, मम्मी कहाँ रह गई? ऐसा कौन सा आर्डर है जो 2 घंटों में भी नहीं दे हुआ? वो लड़के बेहंगम कहके लगाते और हाथों में बोतलें पकड़े दोबारा उसकी तरफ आ रहे थे। कब से खड़ी हो बुलबुल? मेरा ख्याल है तुम्हारा घर इस सड़क पे सीधा जाके आता है। आज तो वहाँ पे भी मेला लगा हुआ है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। उनमें से जैसे ही एक लड़का उसकी जानिब बढ़ा, उसने फुल स्पीड में एक तरफ भागना शुरू कर दिया। वो लड़के ऊंची आवाज़ में हंसते उसके पीछे आ रहे थे। उनकी चाल की लड़खड़ाहट से बोतलों में मौजूद मशरूब का अंदाज़ा हो रहा था। वो जानती थी वो बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। वो बगैर पीछे देखे भाग रही थी। तभी एक लड़के ने उसके पाँव में कांच की बोतल मारी। बंद शूज़ होने के बायस कांच उसके पाँव में नहीं लगा। अब वो गालियाँ बकना शुरू हो गए। तभी उसे सड़क पे कोई फैमिली पैदल आती दिखाई दी। वो फ़ौरन से भागकर उन लोगों के पास चली गई। प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ मुझे बचाएं, ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। वो रोते हुए एक औरत के पीछे छुप गई। उस फैमिली में 2-4 अच्छी जसामत वाले लड़के मौजूद थे। उन्हें देखते ही उसके पीछे भागते लड़के वापस मुड़ गए। कौन हैं आप? इस वक्त अकेली इस एरिया में क्या कर रही हैं? उस औरत ने फ़ौरन उसके कांपती वजूद को अपने सामने किया। मैं अपनी फैमिली के साथ थी। अचानक वो लोग आ गए, चले गए और मैं पीछे रह गई। किस तरफ गए हैं वो? इस एरिया से 2 सड़कें निकल रही थी। शहर की आबादी वाले हिस्से की तरफ जाती सड़क पे स्ट्रीट लाइट ऑन थी, जबकि दूसरी सड़क पे मुकम्मल अंधेरा था। अदन ने अनजाने में एक तरफ इशारा किया। सामने वाली औरत की आंखों में हैरत जागी। आप उधर रहती हैं क्या? नहीं, मेरा घर सिटी की दूसरी साइड पे है। आपके पास फ़ोन है? प्लीज़ मुझे दें, मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करनी है प्लीज़। उस औरत ने हैरत से उसे देखते फ़ोन आगे बढ़ाया। अदन ने कांपते हाथों से दाइम का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। वो इस वक्त मीटिंग में था। मोबाइल को वाइब्रेट होता देखकर स्क्रीन पे आने वाले इन नॉन नंबर को कट करके वो मैनेजर की तरफ मतवज्जो हो गया। प्लीज़ जल्दी करें, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। यहाँ पे तो दिन में लोग नहीं आते और आप रात को खड़ी हैं। हम तो वॉक करने निकले थे। घूमते घुमाते बच्चों को आइसक्रीम दिलवाने के लिए इस शॉप पे आ गए, वरना यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं आता। प्लीज़ सिर्फ 1 मिनट मुझे फिर से ट्राई करने दें। वो लड़के फिर से सड़क पर से गुज़र रहे थे। उसने दोबारा नंबर डायल किया, लेकिन एक बार फिर बेल बज कर बंद हो गई। वो रोते हुए दोबारा उसका नंबर मिला रही थी। वो नहीं जानती थी वो अंधेरी सड़क उस दलदल की तरफ जा रही थी जहाँ से वो एक बार पहले सही सलामत निकल आई थी।